So at the end, we are reaching miscellaneous exercise on chapter 5. Here, all kinds of questions you will face, means differentiation of different functions or different categories, different level of questions you will face in this exercise. And so we must work out this exercise and let us do it together. I will try my best to explain all these questions one after another, and here we'll learn new things and you will get an opportunity to revise in different aspects. Okay, so I hope you will find it enthusiastic. These are the questions in our exercise. You see here, this is very simple questions, and this is u to the power v type questions, means you have to use here logarithmic function, isn't it? This is inverse trigonometric functions. U by v formula is to be applied. Here inverse trigonometric formula is there. So all kinds of questions you will face, right? So let us work out one by one. The first question is 3x square minus 9x plus 5 whole to the power 9. Let y is equal to 3x square minus 9x plus 5 whole to the power 9. Okay. Differentiating with respect to x, we will get dy by dx is equal to d by dx 3x square minus 9x plus 5 whole to the power 9. Now you see this x and this expression is not same. So we have to use chain rule. First, this x is to be replaced by the given expression 3x square minus 9x plus 5. This way. Here whatever x is there, here I have changed this x by this expression. Okay. Then d of 3x square minus 9x plus 5 is this one. D of 3x square minus 9x plus 5 divided by dx. This expression is equal to this expression. Now we will apply d by dx of x to the power n formula. This one. See, x and this x must be same. So that is what we have done. This expression is equal to this expression. And 9 is here for n. So 9 is to be placed here. And 9 minus 1 we will get in the next line, isn't it? Like this 9 for this n, x for this, and then n minus 1 means 9 minus 1, 8. Okay, now to this part we have got this result. Now d by dx of 3x square is this one, minus d by dx of 9x is this one, then d by dx of 5 is this part, right? For this we will get 6x, and for this we will get 9, and this is constant, so for this we will get 0. So finally we will have 6x minus 9 only, right? This part is will remain same. Here we can take common 3. If 3 is taken common, then twice x minus 3 is inside the bracket, is not it? Let's see, like this, 3 whole into twice x minus 3. Now 3 into 9 we will get 27 of this mass, and then twice x minus 3 is this one. So let us write this twice x minus 3 with 27, arranging them. Actually this is the answer, just we have arranged this, and this is our final answer. Okay. Now differentiating with respect to x, we get d by dx of sine cube x plus cos to the power 6x. Now applying distributive law, d by dx of this and d by dx of this. In the next line we will get dy by dx of sine cube x plus d by dx of this cos to the power 6x. Now applying chain rule, here x is to be replaced by this sine x, and this x is to be replaced by cos x. See, x is replaced by sine x, and this is by chain rule. Then this x is replaced by cos x. Again, this part for chain rule. Okay. Then here we will get 3 sine square x, applying d by dx of x to the power n, isn't it? This formula. Now 3 sine x, 3 minus 1. So here we will get 3 sine square x. For this cos x. And for this part 6 cos to the power 5x, and for this minus sine x, 3 sine square x, and this is as it is. Then this 6 cos to the power 5x. Now dy dx of cos x and dy dx of sine x. We'll write here now. This is equal to cos x and this is equal to minus sine x. Rest part is kept as it is. 3 and sine x cos x can be common, because common part 3, here is also 3 sine x is there. In both the terms 3 sine x cos x are there, so let us take them common. What is the remaining portion in the bracket? Sin x minus 2 cos to the power 4x. This is first differentiation,
And number 3. We will apply u to the power v formula, means applying logarithmic differentiation. As usual, y is equal to, if the given function is assumed, and then using this one, dy dx of u to the power v, which is equal to u to the power v dy dx of v log u. You just recall it. Then here u is this 5x and v is this v 3 cos 2x. Okay, we'll write this line. Now using, we'll express this here as it is. Now you see, and for u we'll write 5x, and for v 3 cos twice x mas. I hope you have understood this much already. Right, now you just replace them. This is v and log u. Is it okay? Okay. Then this part, leave it as it is, and then this is also to be kept as it is. Now here we will apply u into v, because two functions are there, right? Applying u into v, v dy dx of u plus u dy dx of v. Now applying u into v formula, is not it? V is this one. Here v is log 5x, so log 5x dy dx of u means 3 cos 2x. Is it clear? Then plus u is the first one, means this first one 3 cos 2x, and then v dy dx of log of 5x is to be written in the next line. Rest, this part will remain, will be kept as it is. 5x to the power 3 cos 2x is left as it is. 3 cos 2x is also left as it is. Now when differentiating this, we are having 1 by 5x using this one, and dy dx of 5x, because we are applying chain rule, plus log 5x. Now 3 for 3 cos 2x, we are getting minus 3 sin 2x. Applying chain rule, the 2x is differentiated again. Okay, from here we will get 5 and here 2. Now in the next line, this is 5 and this is 2. Now multiplying these two, 5 3 15 minus 2 2 minus 3 into 2 minus 6, we will get in the next line like this, minus 6 sin twice x, and then 15 cos 2x 1 by 5. Right, these are simple simplifications, and you can do as your wish this part. Right, 5x, this part is left as it is, and then 5 15 we have cancelled to get 3 cos 2x is this part, and then 1 by x minus 6 sin twice x log 5x. I hope you understood this part. Now let us move to question number 4. Here sine inverse x root over x. Dy dx of sine inverse is to be applied here. Okay, and also we will apply chain rule. Dy dx of sine inverse x root x. So how will you work out this? Now applying this, we will get 1 by root over 1 minus x root x square. But this is not exactly same with this part. So we'll apply chain rule like this way. Dy dx of x root x. 1 by root over 1 minus x square, following this formula. So x square into x will produce x cube. Then this is adding the exponents 1 and half, will get 3 by 2. Okay, 1 by root over 1 minus x cube dy dx of x to the power 3 by 2. To differentiate this part, we will apply x to the power n and x to the power n minus 1. Applying this, we are having 3 by 2 for n and 3 by 2 minus 1 for n minus 1. Is it clear? Then bring 3 by 2 in front like this way. This is equal to half, isn't it? For that we are having root over x. So that's final statement of your question number 4. Okay. So here we are to find out the differentiation of this expression. So as usual, let us consider this function as y, and differentiating with respect to x, we will get this dy dx of cos inverse x by 2 divided by under root twice x plus 7. Okay, and this is to be differentiated following quotient rule, where quotient rule says dy dx of u by v square, v dy dx of u minus u dy dx of v. V represents this denominator and the u represents this numerator, right? Cos inverse x by 2 means we will think here in numerator and this as u and this is as v. Okay, so v square means in the denominator we'll write root over twice x plus 7 whole square. Instead of that, we'll write only twice x plus 7. Okay, like this. And then here what is v means denominator. So this one, root over twice x plus 7 dy dx of numerator minus this numerator dy dx of denominator. Denominator is this one, v, right? Is it clear?
Then differentiation of cos inverse x by 2. Let us calculate this here first, right? This way. Now the dy dx of cos inverse x. This is to be differentiated following this minus 1 by root over 1 minus x square. We know this formula, and that is what is applied here. Minus 1 by root over 1 minus x by 2 whole square, and that this is to be differentiated again by applying chain rule. Half is coefficient, so that is taken out. Dy dx of x, for which we are having 1. Now taking LCM here, 4 minus x square, and this one, then this 4, taking square root of 4 is 2. That 2 is written here in the numerator, taking reciprocal of this 2, okay? And then this half is this one, and differentiation of x is 1. Okay, this is the expression for this differentiation, and that is what we have placed in the next line here. And then for this, and we will see 1 by 2 root x, and that x is to be differentiated again because this is not exactly x. Now for this differentiation we will get 2, because differentiation of x is 1 and the differentiation of 7 is 0. So then 2 will be placed here. Let us write them. 2 and this 2 will get cancelled. We will get cos inverse x by 2 by root over plus x plus 7. Okay, in the next, let us write these two things in two different fractions. You see here, this minus root over twice x plus 7 is this one, root over 4 minus x square is this one, twice x plus 7 is this one. Okay, this fraction is written first, and then minus, and this one is written here, cos inverse x by 2 twice x plus 7, and then under root twice x plus 7. This is the final expression for the equation number 5. Okay, now let us differentiate the function given in question number 6. Function is this one. Before differentiating cot inverse of this part, let us simplify this whole part. Okay, this rational part is to be simplified. Now we are multiplying both numerator and denominator by this numerator. Okay, this numerator into numerator means numerator whole square. Then denominator is this part into numerator, the upper part, right? This denominator is in the form of a minus b whole into a plus b. Okay, then we can write a square minus b square. A square means 1 plus sine x, because under root it is, and then minus b square, under root, both expressions are there, so we will have only 1 minus sine x. Okay, then a plus b whole square will give this expression, a square plus b square. A means this part, b means this one, then 2 root over a into b. Okay, then here minus plus sine x. In the next line we will get 2 sine x, then sine x and sine s will get cancelled, plus 2. See, 2 plus 2, 1 minus, again this is a minus b whole into a plus b, so a square minus b square. Then here you understood this is 2 sine x. Okay, after this 1 minus sine square x is replaced by cos square x, under root cos square x is cos x only. Okay, then 2 sine x is this one. Okay, 2 is taken common, 1 plus cos x, you understood this much, 2 will get cancelled. This 1 plus cos x is equal to cos square x by 2, and the sine x is equal to 2 sine x by 2 cos x by 2. We can replace both this expression, right? 2 cos square x by 2 for this 1 plus cos x, and only for sine x we are having 2 sine x by 2 cos x by 2. Okay, then 2 will get again cancelled. Okay, these 2 and these 2, fine. So again here 1 cos x by 2 will get cancelled with this one cos x by 2. एक cos x by 2 यहाँ पे cancel हो जाएगा, तो बचेगा एक ही cos x by 2, is not it? एक cos x by 2 यहाँ रह जाएगा, ठीक. बाकी cos by sin तो क्या मिलेगा आपको, ऐसे करके cos x by 2 sin x by 2 मिलेगा, ठीक है. और इसका बराबर क्या है, cot x by 2. ये ट्रिग्नोमेट्री से मिला, ठीक है. अब आपका एक्सप्रेशन था cot इनवर्स ऑफ ये एक्सप्रेशन है कि नहीं, तो cot इनवर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन. सो इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट cot x by 2, ठीक है. cot इनवर्स ऑफ cot x by 2 लिख देते हैं. तो cot इनवर्स cot x by 2 इज इक्वल टू x by 2, बिकॉज x तो क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, x by 2 तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, और उस इंटरवल में तो ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है कि नहीं, जो x होता है वही यहाँ पे आता है, ठीक है. ये प्रॉपर्टी है. ओके, नाउ डिफरेंशिएटिंग x by 2 विथ रेस्पेक्ट टू x, बिकॉज हम लोग को ये डिफरेंशिएट करना था, तो इसका बराबर एक्सप्रेशन ये मिला, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ठीक है.
इसीलिए हम लोग इसको सिंप्लीफाई किया था, सो दैट आवर डिफरेंशिएशन बिकम ईजियर। ओके, नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट डी बाई डी एक्स ऑफ x बाई 2। तो इसमें क्या करना है, हाफ को आप बाहर लाइए, डी बाई डी एक्स ऑफ x जिसका बराबर 1 है, तो आपका आंसर आएगा हाफ, है कि नहीं। सो दैट इज ऑल, यही आपका आंसर होना चाहिए इसका डिफरेंशिएशन। तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो इसमें क्या है, log ऑफ x टू दी पावर log x है। इसका फॉर्मेट आपको याद है, u टू दी पावर v। तो u टू दी पावर v मतलब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इसको अप्लाई करना है। तो करते हैं। तो एज यूजुअल इसका बराबर y एज्यूम कर लेते हैं, ऐसे y इज इक्वल log x टू दी पावर log x। नाउ इसको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यूजिंग कौन सा, u टू दी पावर v, जो फॉर्मूला ये है u टू दी पावर v, u टू दी पावर v डी बाई डी एक्स ऑफ v log u, v मतलब पावर है। हाँ, तो आपका यहाँ पे log x टू दी पावर log x ही होगा, और यहाँ पे log x आएगा, log ऑफ एक्स्ट्रा log ये फॉर्मूला का है, और u में फिर log x आएगा। देखिए ये u टू दी पावर v है, ठीक है, और डी बाई डी एक्स v का जगह में log x मतलब पावर जो है, तो log ये अपना फॉर्मूला का है, और u जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, राइट। अब ये डिफरेंशिएशन तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके करेंगे, और ये एज इट इज़ आगे बढ़ते जाएगा ऐसे, इसको एज इट इज़ लिव। इसको प्रोडक्ट रूल में अप्लाई करके हम लोग को क्या मिला, ये u डी बाई डी एक्स ऑफ v मतलब ये प्लस v ये है डी बाई डी एक्स ऑफ फिर log x, इसको करना है। इसका नेक्स्ट क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ log x, इसको डिफरेंशिएट करना है। इसका डिफरेंशिएशन होगा, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होता है, तो मतलब 1 बाई log x एक आएगा, फिर से चेन रूल अप्लाई करके इसको डी बाई डी एक्स ऑफ log x लिखना है। ठीक, ये 1 बाई log x किसके लिए आया, log का डिफरेंशिएशन के लिए। ठीक, x का बराबर ये है, इसको x एज्यूम करके हम लोग किया है, तो फिर उसको फिर करना पड़ेगा, चेन रूल अप्लाई किया, ये जो एक्सप्रेशन था वो ही है, और फिर इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। अब क्या हुआ, इसको फिर से करना पड़ेगा, इसमें भी एक 1 बाई एक्स मिलेगा नेक्स्ट लाइन में, ठीक है, और ये log x आप कैंसिल कर दीजिए, तो फिर ये 1 बाई एक्स किसके लिए, इसका बराबर, और फिर log ऑफ log x डिवाइडेड बाई x। ये अब फिर ये 1 बाई एक्स प्लस log ऑफ log x बाई एक्स ऐसे रख सकते हैं, या तो आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करके रख सकते हैं। ठीक है, यही फाइनल लाइन आप क्वेश्चन नंबर 7 के लिए छोड़ देते हैं इसी पे। ओके, देन लेट अस वर्क आउट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 में क्या है, cos ऑफ a cos x प्लस b sin x फॉर सम कांस्टेंट a एंड b। ये a b कांस्टेंट है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है। ये तो सिंपल है ना, cos का माइनस साइन a cos x b sin x, फिर से करो इसको, और डी बाई डी एक्स a cos x प्लस b sin x को डिफरेंशिएट करना है। a कांस्टेंट है, cos x का माइनस साइन x, और b बाहर आएगा sin x का cos x। ठीक है, बाकी इसको एज इट इज समझ में आ रहा है, माइनस साइन एक्स बी cos x sin x का जगह। ठीक है, यही है आपका आंसर, में आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, फिर फंक्शन टू द पावर फंक्शन ही है, मतलब u टू द पावर v टाइप वाला फॉर्मूला। तो कितना ऐसा सेम टाइप वाला मिलता है मिसलेनियस एक्सरसाइज में, ये काफ़ी प्रैक्टिस होता है। आप मिसलेनियस एक्सरसाइज को करने से ना, तो बहुत सारा क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, इसको आप एज इट इज़ आगे बढ़िए, ये आपको समझ में आया। ठीक है, u टू दी पावर v डी बाई डी एक्स ऑफ v का जगह में तो ये एक्सपोनेंट आएगा ना, sin x माइनस cos x, फिर log तो अपना फॉर्मूला से आएगा, sin x माइनस cos x u का जगह में आ रहा है, तो इसको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके डिफरेंशिएट करना है। इसको अब एज इट इज़ रखो, और फिर आपका हो गया, सिंपल है, खाली स्टेप्स याद रखना है। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो, u v u ऐसे करके, u है ये, v डिफरेंशिएट किया गया, फिर v को रखो, u को डिफरेंशिएट किया गया। ठीक है, इसका 1 बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आएगा, क्योंकि log है ना, फिर इसको करना है, और ये तो स्ट्रेट कट, ये 1 बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स log के लिए आया, और इसका डिफरेंशिएशन तो आपको पता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या है, cos x का माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो माइनस माइनस बराबर यहाँ पे प्लस आएगा नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, इसका हो गया साइन का cos x, और ये cos x का देखो प्लस साइन एक्स। ओके, क्योंकि cos x में माइनस आता है ना, अभी बोला था इधर, ये cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे साइन एक्स माइनस cos x, साइन एक्स माइनस cos x, ये दोनों कैंसिल हो गया। ओके, और ये साइन एक्स का जगह में cos x आया, और माइनस ऑफ साइन एक्स, क्योंकि आफ्टर डिफरेंशिएशन यू विल गेट दैट माइनस एंड दिस माइनस विल मेक इट पॉजिटिव। फाइन, दिस इज योर आंसर। कॉमन स्टेप्स आर देयर फॉर सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके,
क्वेश्चन नंबर 10, इसमें x टू दी पावर x है प्लस x टू दी पावर a है प्लस a टू दी पावर x प्लस a टू दी पावर a, सबका फॉर्मेट सेम है, लेकिन ये जो गिवन एक्सप्रेशन है, फंक्शंस है, वो अलग अलग है। देखो x है फंक्शन, फिर फंक्शन है, और यहाँ पे फंक्शन लेकिन एक कांस्टेंट है, प्लस कांस्टेंट है, पावर फंक्शन है, और यहाँ पे दोनों कांस्टेंट टू दी पावर कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है। तो इसका डिफरेंशिएशन देखो, और सम फिक्स्ड a ग्रेटर देन 0 x ग्रेटर देन 0, ए कांस्टेंट है फिक्स मतलब। तो ये अलग अलग से कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एक्स हम लोग अलग से करते हैं। ये एक्स टू दी पावर ए कैसे करोगे, ये एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ये तो स्ट्रेट फॉर्मूला आपके पास है, और ये कांस्टेंट है 0, इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। और देखो एक्स टू दी पावर एक्स को फिर अलग से कर लेते हैं, और ए एक्स टू दी पावर एन, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा एक्स टू दी पावर ए के लिए। तो नेक्स्ट क्या आएगा, a आएगा यहाँ पे n का जगह में, और x टू दी पावर a माइनस 1, ये सिंपल है, समझ गया। इसको आप कर लीजिए यहाँ पे x टू दी पावर x u टू दी पावर v, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ v मतलब पावर, log अपना फॉर्मूला का, ये u बेस है u, ठीक। अब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने से आसानी से ये हो जाएगा, एक u v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v इसका ये डिफ्रेंशिएशन। तो इसमें 1 आएगा और इसमें 1/x आएगा। 1/x देखो, ये डिफ्रेंशिएशन 1/x, इसका 1 इंटू हो गया log x, ऐसे x टू दी पावर x 1 प्लस log x। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा ना, पूरा का पूरा ये एक्सप्रेशन के लिए यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो आसान हो जाएगा ना। इसका हो गया सब्स्टिट्यूशन। फिर इसके लिए इसका अप्लाई किया a x टू दी पावर a माइनस 1, और ये तो अपना फॉर्मूला है a टू दी पावर x log x बेसी, तो दिस इज कांस्टेंट, सो 0, दैट्स ऑल। 11 में क्या है u टू दी पावर v प्लस u टू दी पावर v, मतलब ये फॉर्मेट का है, इस फॉर्मेट का ही है। तो आप अलग अलग से कर लीजिए, इसको u समझ लीजिए, v समझ लीजिए, दिखाते हैं ऐसे करके। u फर्स्ट पार्ट को समझ लिया और v सेकेंड पार्ट को लिया, ठीक है। तो y क्या होगा, u प्लस v इस टाइप का होगा। इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स, ये हो गया। और अब u ये है ना, इसका जो फॉर्मूला u टू दी पावर v इस टाइप में आएगा ना, उसका एप्लीकेशन करने से ये होगा u टू दी पावर v डी बाई डी एक्स ऑफ v मतलब पावर, log फिर u मतलब x, ऐसे हो गया, समझ गया। पहले इसको निकाल लेते हैं ना अलग अलग से, इसको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो, ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने से ये आएगा। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1/x ते रहना, तो ये 1/x हो गया, log x, उसका डिफरेंशिएशन 2x आया। फिर x स्क्वायर माइनस 3/x प्लस 2x इंटू log, ये du बाई डी एक्स हो गया। तो समझ लेते हैं इसको 1, ठीक। फिर v x माइनस 3 टू दी पावर एक्स स्क्वायर, मतलब ये v हो गया, ये u टू दी पावर v, मतलब ये जो फॉर्मेट है इसका, उसका u v, हाँ ये तो v अभी हम लोग का एजम्पशन है, ठीक। इस v और इस v में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ओके। सो डी बाई डी एक्स ऑफ u and this exponent, right? Now this as it is, and d by dx of here the exponent and then log of base, ऐसा ही होता है ना। ओके, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं इसको, u और फिर दिस पार्ट एंड दिस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, ऐसे करके एक बार इसको छोड़ना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। आपको प्रोडक्ट रूल याद है, ये इसको एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, इसको डिफरेंशिएट किया, फिर log x माइनस 3 को रखा और इसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन 1/x माइनस 3, और फिर इसको करने से तो 1 ही आएगा, क्योंकि x का 1 होता है, 3 का 0, डिफरेंशिएशन का बारे में बोल रहा हूँ। और इसका 2x, देखिए ये 2x और ये इसका डिफरेंशिएशन 1, ये ठीक है। बाकी एज इट इज़, अब इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, नंबर 2 दे देते हैं। तो अब आपका y इज इक्वल du बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स जो था उसमें ये सब लिख देते हैं। तो du बाई डी एक्स इतना मिला था, डी वी बाई डी एक्स ये मिला था, तो ये दोनों को हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और दैट्स ऑल, दैट इज आवर आंसर, इधर ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। ओके, इट्स नॉट अ टफ क्वेश्चन, इधर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12,
find dy by dx if y is 12 whole into 1 minus cos t, x is equal 10 whole into t minus sin t। ये मतलब पैरामेट्रिक फॉर्मेट में है। देख, फिर dy by dx is equal dy by dt into dt by dx, ये बराबर रहा ना, क्योंकि t पैरामीटर है। अब आपको y is a function of t, तो t से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फिर x को अब t से ही करना है, रेसिप्रोकल लेने के लिए डिवीजन साइन तो देना पड़ता है। तो dy by dx का बराबर एक्सप्रेशन ये है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, y का डिफरेंशिएशन पहले करेंगे और x का डिफरेंशिएशन करते हैं, y का डिफरेंशिएशन करते हैं और x का डिफरेंशिएशन करते हैं। दोनों को करके यहाँ सब्स्टिट्यूट करने का बाद सिंप्लीफाई करते हैं। सो दैट इज हाउ वी फाइंड dy by dx। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड टू फाइंड द डिफरेंशिएशन dy by dt एंड dx by dt। ओके, y का जगह में 12 होल इंटू 1 माइनस cos t, फिर डिवीजन, x का जगह में ये डाल देते हैं, आसान है, t sin t। ओके, नाउ प्रोसीड। इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, 12 बाहर आएगा, ठीक, 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos t का माइनस साइन टी, सो प्लस साइन टी होगा इसमें। तो न्यूमरेटर में 12 साइन टी होगा और डिनोमिनेटर में 10 बाहर आएगा, इसका जगह में 1 और माइनस इसका जगह में cos t आफ्टर डिफरेंशिएशन। सो यू what is your denominator, you see 1 minus cos t, right? Now you can cancel them। वो क्या मिलेगा, कैंसिल करके इसमें 6 मिलेगा और इसमें 5 मिलेगा, ये 6 आया और साइन t का हाफ एंगल में ये एक्सप्रेशन होता है, ठीक। और फिर ये तो कैंसिल करके 5 मिला था और 1 माइनस cos t 2 साइन स्क्वायर t बाई 2, ये हाफ एंगल का फार्मूला है, ठीक है। अब आप 2 कैंसिल कर दीजिए, फिर साइन t बाई 2, इसमें एक साइन t बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 6 बाई 5 और cos t बाई 2 साइन t बाई 2 वो बचेगा ऐसे, मतलब cos बाई साइन हो गया ना, फिर 6 बाई 5 इंटू cot t बाई 2, राइट। ये हो गया आपका आंसर। Okay. Now question number 13. What is to be found out? Find dy by dx. y क्या है, ये sin inverse x plus sin inverse root over 1 minus x square। अब इन्वर्स फंक्शन यूज करना है। Given that y is equal to this, and then we know that cos inverse x is equal sin inverse root over 1 minus x square। दिस वन, ये हम लोग को पता है। और एक फॉर्मूला पता है, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये दोनों यूज़ करके इसको इतना छोटा कर देते हैं, आप देखो ये है y इज इक्वल साइन इनवर्स x प्लस इसका बराबर अब cos इनवर्स x डाल रहा हूँ, क्योंकि ये पता है हम लोग को, वी नो दिस। एंड देन दिस इज इक्वल टू दिस वन, सो y इज इक्वल टू पाई बाई 2। नाउ यू डिफरेंशिएट dy by dx which is equal to 0 because it is constant, right? So find dy by dx, that is your answer। Okay, now let's move to question number 14। Now in the question 14, if x root over 1 plus y root over 1 plus x equal to 0, where x lies between minus 1 to 1, we are to prove dy by dx is equal minus 1 by 1 plus x whole square। ओके, सो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। इसको आप प्लस इसको राइट साइड में ले जाइए, तो माइनस y ऐसा हुआ, ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये मिलेगा, रूट ओवर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया। अब देखिए सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कौन सा है, एक्स स्क्वायर ये हो गया और वाई स्क्वायर ये है, तो एक्स स्क्वायर वाई इस साइड में आएगा ना, माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और ये एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई आप कॉमन ले सकते हैं और इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, दिस वे, और इसमें कॉमन लेने के बाद ये आया, ठीक है। एक्स माइनस वाई और वाई माइनस एक्स लगभग सेम है, लेकिन इसको आप
माइनस एक कॉमन लेके सेम कर लीजिए ऐसे x माइनस वाई। अब इन दोनों को आप रिमूव कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि x और y इक्वल नहीं हो सकता है। ओके, अब x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बचेगा, ठीक। अब y और x y इस साइड में आप ट्रांसपोज करने के बाद ये मिलेगा और x को इधर लेके आइए, फिर यहाँ पे y कॉमन लीजिए तो y इक्वल आपको क्या मिलेगा, माइनस एक्स बाई वन प्लस एक्स मिलेगा, ये माइनस एक्स बाई वन प्लस एक्स, ठीक है। इसको आप अभी डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसको करना है, हाँ चाहिए ये, डोंट फॉरगेट। और आप u बाई वी मतलब कोसेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो v स्क्वायर ये हो गया v वन प्लस एक्स डिवाइड एक्स ऑफ u माइनस एक्स माइनस u जो माइनस एक्स है डिवाइड एक्स ऑफ v, ये कोसेंट रूल अप्लाई किया आपने। तो इसमें मिलेगा आपको माइनस वन और इसमें मिलेगा आपको वन, समझ रहे हैं ना, ऐसे वन प्लस एक्स माइनस वन माइनस दिस इज माइनस एक्स एंड दिस इज फॉर दिस इट इज वन। ओके, देन वन प्लस एक्स into minus 1, so minus 1 minus x and then minus into minus plus x, right? Then what will you get? Minus x plus x get cancelled, then minus 1 by 1 plus x whole square, this one, and this is what your target, isn't it? So proved. Okay, so 14 is, this is how done. Okay, let's move to question number. This is your question number 15. If x minus a whole square plus y minus b whole square equal to c square for some c greater than 0, prove that 1 plus dy by dx whole square whole to the power 3 by 2 divided by d square y by dx square. This expression is a constant. इसका बराबर एक constant आएगा जो independent of a and b. ये जो a b यहाँ है वो इस expression का जो बराबर value निकलेगा उसमें नहीं आएगा। इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी मतलब ए बी नहीं रहेगा इसका एक्सप्रेशन में, वो हम लोग को दिखाना है एक्चुअली, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, आपको सेकेंड डिफरेंशिएशन भी निकालना पड़ेगा और फिर ये लेके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। देखो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कैसे निकालने के लिए दिया हुआ है आपको इनडायरेक्टली। ओके, तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे और उसको फिर करेंगे तो सेकेंड डिफरेंशिएशन मिलेगा हमको, फिर इस एक्सप्रेशन में डाल के सिंप्लीफाई करने का बाद जो मिलेगा देखते हैं। तो गिवन दिस एक्सप्रेशन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये एक्स टू द पावर एन फॉर्मूला अप्लाई किया है, चेन रूल भी अप्लाई होगा इसमें, ठीक है। नाउ टू होल इनटू एक्स माइनस ए दिस वन एंड फॉर दिस विल गेट वन एंड दिस इज अ कांस्टेंट सो 0, एंड 2 होल इनटू y माइनस b, for this y it is 1 and this, and for this constant we are having 0, right? And this is also a constant, so 0. Now let us simplify it. 2 whole into x minus a, 2 whole into y minus b dy by dx, right, equal to 0. Now dy by dx is equal to minus x minus a by y minus b, which is obtained just simplifying this, right? Now d square y by dx square, d by dx of this x minus a by y minus b with minus sign, right? Now you know u by v is to be applied here. So v square v divided x of u minus u divided x of v. Okay, this is dy by dx, x minus a is same. Now for this you will get 1. So here nothing is written, y minus b only, right? Okay, now d square y by dx square, y minus b x minus a dy by dx is replaced by its own value minus this one. Now this y minus b, taking LCM y minus b whole square, x minus a, x minus a, x minus a whole square, this minus into minus, we are having plus this y minus b and this y minus b square, we are having y minus b whole cube. So but this is given as c square, that is what we have used here. Now we have got dy by dx and d square y by dx square, both values are obtained. Now let us go to the expression here. This is our given expression. Here we have to put their respective values.
This 1 plus dy by dx. 1 plus dy by dx is this much, and this is whole square, is not it? So this is how is simplified. Now taking LCM, we will get this c square by y minus b whole square. I hope you understood this much. This is very simple simplification. Okay, and now we will put this result here instead of 1 plus dy by dx whole square, right? See, c square by y minus b whole square is taken from here. 3 by 2 is the original one, and the value of this one is this. Already we have got. Now in the next line, both squares are cancelled with these two. So we will get c cube y minus b whole cube, c square by y minus b whole cube, right? See what is there? Y minus b whole cube and y minus b whole cube get cancelled. Then c cube by c square will give us c. This minus is this one. So minus c is a constant free from a and b. So that is what is to be proved, isn't it? So this is what we were to prove, isn't it? एक कांस्टेंट दिखाना था और ए और बी से फ्री होना चाहिए था, मतलब यहाँ पे ए बी नहीं होना चाहिए, तो नहीं भी है और कांस्टेंट भी है. Now question number 16. If cos y is equal to x cos a plus y with cos a not equal to 1, prove that dy by dx equal to cos square a plus y by sin a. ठीक है, ये x इक्वल क्या होगा? cos y डिवाइडेड बाय cos a plus y, ऐसा होगा. ठीक है, इसको ही सेम लाइन. अब डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू y, क्योंकि राइट साइड में y है, ऑल फंक्शंस आर ऑफ अ फंक्शन ऑफ y. Then dx by dy, d by dy, this one. u by v अप्लाई करते हैं तो v स्क्वायर v d by dx u ऐसा करके आता है कोसेंट रूल. तो देखो v स्क्वायर आ गया, v आ गया, d by dy cos, मतलब ये न्यूमरेटर जो u में होना चाहिए, फिर u और d by dy a plus y ये. ओके, then this equal to minus sin y, and this is equal to minus sin a plus y, this one and this one. Now minus into minus will be positive, right? In the next line, minus minus we will get positive, but let us take minus common, so it will remain minus and this minus will be positive, like this. Minus is taken common, so it becomes positive, and this is now negative. Clear? This expression can be written in the form this way: sin a cos b minus cos a sin b, in this format, or sin c cos d minus cos c sin d format, is not it? So that is what is equal to sin a minus b, is not it? So y minus y get cancelled, sin minus a, this one, and this is dx by dy, is not it? Minus and minus will be plus sin a. Now plus sin a by cos square a plus y, but we need dy by dx, is not it? So we have to take the reciprocal of this expression. So write dy by dx, and this denominator is to be written in numerator like this way: cos square a plus y by plus sin a, isn't it? So this is what our expression to be proved, isn't it? Now question number, what is there? This is a question from parametric format. Here x is given and y is given, so we will find out dy by dt and dx by dt, is not it? Now we are going to find dy by dx, dt by dt, this parameter is to be introduced here, and then dt by dx, this is to be reversed. For that, let us put this division sign. Okay, now these two expressions are equal. Now we will find dy by dt and dx by dt. dy by dt, a sin t minus t cos t is this one. Now distributing d by dt, d by dt sin t minus d by dt t cos t. Here we will apply product rule. Then t, d by dt of sin t, which is giving cos t, minus using product rule u into v, मतलब du d by dt of v plus v d by dt of u. So d by dt of cos t is minus sin t, and for this we have written 1, then
this minus minus plus t sin t, and then plus with this minus minus cos t, then cos t and cos t will get cancelled. So a t sin t is our final expression, okay, for dy by dt. Similarly, we will find out dx by dt. So d by dt of x is this much, right? Now distributing d by dt is this one. So this is equal to minus sin t, and this is to be done, and this is to be done using product rule, like this way, t by dt of sin t. This is v d by dt of u. Okay, you understood this much? Then this is minus sin t, and for this minus sin t. Okay, let's move. Minus sin t, t for this cos t, sin t, and this is giving 1. Okay, minus sin t plus t cos t plus sin t will be cancelled. So finally you will get a t cos t for dx by dt. You got dy by dt and dx by dt, right? dy by dt and dx by dt already obtained, and their values a t sin t and a t cos t are being put here. A will get cancelled, t also get cancelled, sin t by cos t, which will be giving tan t. Okay, this is dy by dx. Now differentiating again, we are having this. So d by dx of tan t means sec square t dt by dx, but we do not have dt by dx, we have dx by dt. So we will write this one taking reciprocal, like this 1 by t cos t. Okay, reciprocal of this one. So sec square t in terms of cos t, writing in terms of cos t, we will have this a t cos cube t, which is our second differentiation, and that is all, nothing more. So next we will work out question number 18. क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में? ये देखिए, इफ एफ एक्स इज इक्वल मोड ऑफ एक्स होल क्यूब, तो इसका डिफरेंशिएशन, सो दैट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट्स फॉर ऑल रियल एक्स एंड फाइंड इट. ठीक है, ये फॉर ऑल रियल एक्स इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन देखो, मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एज इट इज होता है कब? जब एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है या तो जीरो होता है. ठीक है, बराबर रहेगा. और मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स होता है जब ये एक्स नेगेटिव नंबर होता है. नाउ इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, तब एफ एक्स क्या होता है इस डेफिनेशन के अनुसार देखते हैं. तो व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब, क्योंकि ये मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ही होता है. सो मॉडुलस ऑफ एक्स का जगह में हम लोग अभी एक्स लिख सकते हैं, बिकॉज एक्स इज टेकन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. नाउ इसका डिफरेंशिएशन एक्स टू द पावर एन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल 3x. ठीक है, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे. अब तो ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए कर रहा हूँ ना, तो डबल डिफरेंशिएशन भी होगा. देखो, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 6x, इसका वही है एक्स टू द पावर एन फॉर्मूला लगाने से. ठीक है, फॉर ऑल रियल नंबर्स व्हिच आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, our second differentiation is 6x. okay, now when x less than 0, मतलब नेगेटिव नंबर्स के लिए लूँ तो तब ये fx क्या होगा? माइनस एक्स लेना पड़ेगा मॉडुलस ऑफ x के लिए, तब माइनस एक्स क्यूब होगा fx. ठीक है, तो उस समय हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर मिलेगा फर्स्ट डिफरेंशिएशन में, और डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 6x आएगा ऐसा. ठीक है, तो आप देखो, ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, एंड ये ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स. तो कम्प्लीटली नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए हम लोग ये डबल डिफरेंशिएशन निकाला. दस एफ एक्स इज इक्वल मोड ऑफ एक्स क्यूब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. ये पूरा का पूरा रियल नंबर्स के लिए एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट्स, विच इज एफ डबल डैश एक्स इक्वल 6x when non-negative real numbers and minus 6x when negative real numbers. That's all. Okay. Now in question number 19, using mathematical induction, prove that dy dx of x to the power n and x to the power n minus 1 for all positive integers. This formula is to be proved now using mathematical induction. ये mathematical induction आपने फर्स्ट ईयर में किया था, तो देखो वहाँ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, मतलब रिवाइज भी होगा और फिर नया एक रिफ्रेशमेंट मिलेगा आपको. तो दैट इज व्हाई आई एम रिपीटिंग दैट दिस एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो
मैथमेटिकल इंडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, 3 स्टेप से। फर्स्ट स्टेप में 1 इनपुट डालते हैं, तो ये स्टेटमेंट है Pn समझ लेते हैं, फिर n इज इक्वल टू 1, तो ये क्या होगा P1 होगा, मतलब d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 1 और 1x 1 माइनस 1, तो दोनों बराबर है कि नहीं, तो इसमें x टू द पावर 1 इसका डिफरेंशिएशन टू 1 होता है और इसका एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन, तो देखो ये x टू द पावर 0 मतलब 1 ही होगा, तो ये स्टेटमेंट 1 के लिए ट्रू है। तो Pn is true for n is equal to 1. Then let Pk is true for positive integer n is equal to k. That means Pk is d by dx of x to the power k, which is equal to k into x to the power k minus 1 for all positive integers n. Then to prove that Pn is true for positive integer n is equal to k plus 1. k plus 1 के लिए हम लोग को प्रूफ करना है। ओके, तो मतलब क्या करना है, d by dx x to the power k plus 1 k plus 1 whole into x to the power k plus 1 minus 1 means x to the power k, that is to be proved. ओके, तो उसके लिए d by dx of x to the power k plus 1 ले लेते हैं, तो इसका क्या होगा, देखो x और x to the power k कर देते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल लॉ अप्लाई करते हैं। देखो x to the power 1 मतलब पावर 1 है और इसमें k है, तो प्लस कर देने से k plus 1 आएगा ना, तो इसको u v मतलब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, ऐसे u डिवाइड एक्स ऑफ v प्लस v डिवाइड एक्स ऑफ u ऐसे करके, तो इसका क्या होगा kx k माइनस 1 इन kx टू द पावर k माइनस 1, इतना तो हम लोग इसके लिए एज्यूम करके रखा है ना, उसको लिखा, फिर इसका 1 x टू द पावर k ये है, ठीक, तो ये क्या होगा, कुल मिला के kx टू द पावर k होगा बाय यूजिंग एक्सपोनेंशियल, ठीक है, kx टू द पावर k और x टू द पावर k ये है। अब इसमें x टू द पावर k कॉमन लेते हैं, तो k प्लस 1 x टू द पावर k मिला, ये इसका बराबर क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर k प्लस 1, ठीक है, इसको जोड़ लीजिएगा, तो दस pk प्लस 1 इज ट्रू व्हेनेवर pk इज ट्रू, जब pk ट्रू होता है, मतलब ये स्टेटमेंट हम लोग ने एज्यूम किया था ना, इफ दिस इज ट्रू देन pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, दैट्स व्हाट वी हैव प्रूव्ड। इसका मतलब क्या है, सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n, ये तो प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, यूजिंग द फैक्ट दैट sin a प्लस b इक्वल टू sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b एंड द डिफरेंशिएशन, ये दोनों फैक्ट यूज करके हम लोग को अटेन द सम फार्मूला फॉर कोसाइंस। व्हाट इज द सम फार्मूला फॉर कोसाइन, दैट इज cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b, ये cos a प्लस b वाला फार्मूला हम लोग को निकालना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन एंड दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। फर्स्ट हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे और उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, लेकिन ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, इसमें भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा है, तो cos a प्लस b डी बाई डी एक्स ऑफ a प्लस b, चेन रूल अप्लाई किया, फिर sin a पहले आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos b ये आया, प्लस cos b, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ sin a, ठीक है, प्लस इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो cos a आएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ sin b ये, प्लस sin b इसको छोड़ दिया और फिर डिफरेंशिएट किया cos a को, cos a का डिफरेंशिएशन माइनस sin a, इसका डिफरेंशिएशन प्लस cos b, इसका प्लस cos a, इसका माइनस sin b, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे ऐसे, ठीक है, यस माइनस sin b आया, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू x किया, इसीलिए फिर से इसको db बाई डी एक्स लिखा, इसमें cos a आया da बाई डी एक्स, ठीक है, db बाई डी एक्स इसको लिखा, फिर इसका da बाई डी एक्स, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब हम लोग इस माइनस को आगे लेके लिखते हैं इसको नेक्स्ट लाइन में, इसको माइनस साइन बी साइन ए किया और इसको माइनस साइन एस साइन बी किया, ठीक है, बाकी एज इट इज़, इसको भी एज इट इज़ रखिए। अब देखो कॉमन कुछ आएगा, डी बी बाई डी एक्स, डी बी बाई डी एक्स ये कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे डी ए बाई डी एक्स, डी ए बाई डी एक्स लेकिन लिखते हैं क्या होता है, डी बी बाई डी एक्स, इसमें क्या आया कॉस ए कॉस बी ये वाला, फिर माइनस साइन एस साइन बी ये, ठीक, इसमें कॉस ए कॉस बी इसको थोड़ा सजा के लिख दिया आगे पीछे करके, और इसमें साइन ए साइन बी भी आगे पीछे कर दिया, और डी ए बाई डी एक्स इन दोनों को एक साथ कॉमन लेके ऐसे लिखा। अब हम लोग को क्या मिला देखो, ये कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी, इसका मतलब दिस फैक्टर एंड दिस फैक्टर आर कॉमन, तो हम लोग इन दोनों को कॉमन लेके इसको एक अलग फैक्टर बना देते हैं, ठीक है।
ऐसे करके। और इसमें देखो dA/dx dB/dx डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और क्योंकि ये dA/dx dB/dx ये दोनों मिला हम लोग को, क्योंकि इन दोनों को हम लोग कॉमन लिया था। ओके, मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ये कॉमन फैक्टर्स को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। बाद में मिलेगा क्या, cos A + b और cos A cos b माइनस sin A sin b रहेगा ऑन देयर रेस्पेक्टिव साइड्स। तो दैट इज़ व्हाट आवर एक्चुअली द सम फार्मूला फॉर कोसाइन। तो यही है तरीका, वे ऑफ फाइंडिंग द सम फार्मूला फॉर कोसाइन्स, राइट। ओके, देन लेट्स मूव। Question number 21. Does there exist a function which is continuous everywhere but not differentiable at exactly 2 points? Justify your answer. ऐसा तरह तरह का फंक्शन होगा, लेकिन हम लोग को अभी क्या चाहिए, कॉन्टिन्यूस चाहिए और नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट में डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो हम लोग को मॉडुलस फंक्शन में एक आइडिया मिला था कि कोई भी फंक्शन का 4 पॉइंट में डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो ऐसा ही हम लोग 2 फंक्शन लेंगे, ठीक है। सर्टेनली देयर आर फंक्शंस व्हिच आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। तो फॉर एग्जांपल f(x) = x² व्हेन x < 0, मतलब नेगेटिव रियल नंबर्स का जो सबसेट होता है वो, और x > 1 इस इंटरवल में 1 से और 1 को लेके। तो इस इंटरवल में x² और बाकी 0 और 1 का बीच में इंक्लूडिंग 0, तो उसमें x, ठीक है। इसका ग्राफ देख लो, कौन सा दोनों पॉइंट में ये नॉट डिफरेंशिएबल होता है, इसी से पता लग जाएगा हम लोग। ये देखो ग्राफ ये है, तो ये शार्प पॉइंट है एक, और यहाँ पे एक शार्प पॉइंट है, क्योंकि ये y = x है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फिर ये पैराबोलिक है, ये 0 से छोटा नेगेटिव नंबर के लिए बोला था ना x², और 1 से बड़ा ये 1 है, ठीक है। 1 तक ये स्ट्रेट लाइन है, आगे ये पैराबोला है। तो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है जहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आप कौन सा पॉइंट है वो जस्टिफिकेशन में बता दीजिएगा कि पॉइंट A, पॉइंट B ऐसे करके, हाँ, क्योंकि ये शार्प पॉइंट है। फिर और एक ऐसे देखिए, तो f, ठीक है। ग्राफ देखिए आप, इससे समझ में आ जाएगा। ये देखिए AB, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप 1, ठीक है। और बाकी ये देखिए ये पैराबोलिक, इसका जैसा फंक्शन हमको बहुत सारा मिलेगा, ठीक है, जिसमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहेगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। यहाँ पे ये दोनों शार्प पॉइंट देख रखा है, यहाँ पे ये पॉइंट शार्प है, यहाँ पर ये पॉइंट शार्प है, मतलब इन दोनों पॉइंट में ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा फंक्शन आप बहुत सारा दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ये जस्टिफिकेशन के लिए एक ही काफ़ी था, तो 2 दे दिया, मतलब आपको ज़्यादा फेमिलियर होने के लिए, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 22. What is here? Oh, it is a determinant. If y is equal to this one, then what? So that dy/dx determinant का differentiation f' x, g' x, h' x, l, m, n, a, b, c, इसका यही होगा, ये आपको दिखाना है। तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो एक एक रो करते हैं। फिर देखो ये फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन हो गया, बाकी एज इट इज़ रहता है, हाँ, प्लस सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट रो एज इट इज़, थर्ड रो एज इट इज़, ठीक है, प्लस अब फर्स्ट सेकेंड एज इट इज़, थर्ड रो का डिफरेंशिएशन, राइट। इसी तरीके से हम लोग डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। और इससे आपको क्या मिलेगा, ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, इसका मतलब ये पूरा रो 0 हो जाएगा और इसमें ये पूरा रो 0 हो जाएगा। इसका मतलब डिटर्मिनेंट का क्या होता है, कोई भी रो और कॉलम 0 मिल गया पूरा का पूरा, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। तो ये दिस इज़ 0, दिस इज़ 0, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट थोड़ा रिकॉलिंग होता है, ठीक है, ठीक है। ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, और ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। 23 में चलते हैं, क्या है, y = e⁴ cos इनवर्स x, यहाँ पे x अपना डोमेन -1 to 1, ठीक है। सो दैट 1 - x² d² y/dx² माइनस x इंटू dy/dx माइनस a² y = 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है यहाँ से, ठीक है। डिफरेंशिएट करके, मतलब यहाँ पे सेकेंड डिफरेंशिएशन है, मतलब 2 बार आपको करना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट टाइम e⁴ cos इनवर्स x, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एज इट इज़ आएगा, लेकिन चेन रूल अप्लाई होगा।
a बाहर आएगा। cos इनवर्स x का जो अपना फॉर्मूला है क्या है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन हम आगे लगा दिया, ठीक है। और दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली आवर y, तो हम लोग इसमें y लिख सकते हैं ना, वैसे माइनस ए वाई कर दिया। और दिस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज दिस वन, क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गॉट दिस। नाउ अगेन वी आर टू डिफरेंशिएट बिकॉज वी आर गोइंग फॉर सेकेंड डिफरेंशिएशन। ऐसे करके डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी करेंगे, मतलब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। और ये तो सिंपल है, देखिए प्रोडक्ट रूल यू भी डी वाई बाई डी एक्स को समझा, तो डी वाई बाई डी एक्स यू, ठीक है। ए इसका डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स वाई का। ओके, नेक्स्ट लाइन में ये एज इट इज़ है, ये डिफरेंशिएट किया, इसका डिफरेंशिएशन 1/2√x का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। ओके, देन इसका सेकेंड डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो सिंबल होता है वो, और ये तो एज इट इज़ है। ओके, लेट अस डिफरेंशिएट दिस, तो देयर फॉर दिस एक्सप्रेशन विल गेट -2x, ये -2x। ओके, rest part is as it is. Now these 2 and 2 will get cancelled. Okay, then we'll multiply each and every term by this factor √1 minus x square. Then √1 minus x square into √1 minus x square will be whole squared. So this √, will get removed. Now here this will also be removed, and then minus a dy by dx into √1 minus x square. You see this here √, is removed, and then this expression has come here. Okay, now in the next line we will keep this left hand side as it is, and then here minus a, whole expression is to be replaced by minus ay. See, this is exactly this one, dy by dx into √1 minus x square, dy by dx into √1 minus x square, isn't it? So here we will place minus ay, this one. Then finally you will get plus a square y, right? This plus a square y is transposed to the left because we need this expression. That's what is this one, right? Means that's all you have found. So thank you very much. Okay.